اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو، آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آئیے آج میں بیان کروں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور فرعون پر 5 عذاب کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر 5 عذاب مسلسل فرمائی۔ آپ سنیے، کافی اچھا لگے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو، اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگروں نے سجدے میں آ کر ایمان قبول کر لیا، لیکن جو فرعون تھا، جو فرعون کے لشکر تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل پر اس طریقے سے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اس طریقے سے بنی اسرائیل پر ان لوگوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر، فرعون نے جب بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تو ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے میرے رب، آپ نے دیکھا کہ اس فرعون نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پہ یہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ، اس فرعونوں پر اس طریقے سے عذاب مسلسل فرما کہ میرے تمام آنے والے لوگوں پر یہ عبرت بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرمائی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں دعا قبول ہوتی ہے، ویسا ہی فرعونوں کے محل میں اتنی بھیانک طوفان آتی ہے، اس طریقے سے طوفان آتی ہے کہ پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بارش مسلسل فرمائی۔ اس فرعونوں کے گھر، اس فرعونوں کے محلوں میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی برسات عطا فرمائی کہ ان کے گھروں تک پانی بھر گئے، یہاں تک کہ فرعونوں کے گھروں تک پانی بھر گئے، جو کھڑے تھے ان کی گردنوں تک پانی آ گئی، اور جو بیٹھے تھے وہ پانی کی وجہ سے وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونوں پہ عذاب مبتلا کی کہ تمام بارشوں سے ان کے تمام باغات اور ان کے جتنے بھی اناج تھے سب اس پانی کی برسات سے سب ختم ہو گئی، جتنے بھی تھے وہ کیا ہو گئی؟ تمام ختم ہو گئی۔ اور جب فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل کے گھر و دیوار بالکل حفاظت سے ہے، بنی اسرائیل کے یہاں تو ایک بوند بھی پانی کا ٹپکا نہیں برس رہا ہے، لیکن یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ ہمارے محلے میں بس اتنے پانی آ گئے ہیں کہ ہماری تمام باغات ڈوب چکی ہے، ہماری تمام اناج پانی ختم ہو چکی ہے، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ تھے تمام ہلاک ہو گئے، اور اتنی پانی مسلسل ہو گئی ہے کہ ہماری گردنوں تک پانی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایک وقت گزرا، دوسرا دن گزرا، فرعون ان تمام عذابوں سے پریشان ہونے لگا، اس پانیوں سے پریشان ہونے لگا، ان تمام چیزوں سے پریشان ہونے لگا، ان کا پانیوں میں رہنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا پانیوں میں رہنا مشکل ہو گیا، پانی میں رہ کے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ لوگ اتنے کم بخت تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے موسیٰ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ایمان لے آؤں
आऊंगा तो अल्लाह से दुआ कर कि हमारी तमाम अजाबों को उठा ले, हम पर ये जो भी पानी की बरसात हो रही है ये उठा ले। मैं तुझसे अहद करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर मैं अल्लाह पे ईमान ले आऊंगा। इतना कहना होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, 7वें दिन उनकी तमाम अजाबों को उठा लिया जाता है। जैसे ही अजाब खत्म होती है, वो लोग देखते हैं उस पानी के बदौलत इस तरीके से सब्जी उग रही है कि आज तक कभी किसी ने ऐसी सब्जी ना देखी हो। इनके बागात इस तरीके से हरे भरे हो गए हैं कि आज तक कभी फिरौन ने ऐसे बागात ना देखी हो। 1 महीने तक तो फिरौन काफी सुकून व चैन के साथ रहा, लेकिन उन लोगों ने फिर भी अपने ईमान नहीं लाया। वो लोग अपने अहद पे मुकम्मल ना उतरे, ये लोग ईमान न लाए। ये लोग फिर से बनी इसराइल पे जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। उन लोगों को बनी इसराइल को वहां पे रहना मुश्किल हो गया। इतने वो लोग परेशान कर दिए बनी इसराइल को, वो तमाम मोमिनीन को, कि वो लोग वहां पर रहना मुश्किल हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ए अल्लाह फिर फिरौनों का जुल्म व सितम बढ़ रहा है, ये लोग फिर से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ए अल्लाह इन लोगों पे इस तरीके से अजाब मुब्तला फरमा कि फिर ये लोग बनी इसराइल को परेशान करना बंद कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ यहाँ पे कबूल होती है, वहाँ पे फिरौन के घरों में टिड्डियों की बरसात इस तरीके से होती है, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला टिड्डियों को आजाद बनाकर भेजता है कि उनकी तमाम फसलें टिड्डियां खा जाते हैं, उनकी तमाम बागात को खा जाते हैं। यहाँ तक कि फिरौन के घर में जो लकड़ियां लगी रहती है वो टिड्डियां तमाम लकड़ियों को खा जाते हैं। इतने सैकड़ों में टिड्डियां बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि फिरौनों को अपने घर में रहना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि फिरौनों को सांस लेना मुश्किल हो गया। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन फिरौनों पे अजाब मुब्तला की कि उन लोगों को अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये लोग फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं, ए मूसा हम लोगों से गलती हो गई, मैं अहद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अब की बार मैं ईमान ले आऊंगा। तो अपने अल्लाह से दुआ कर कि ये अजाब हम लोगों से उठा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये लोग बिल्कुल ही अब इस अजाब से ये लोग बिल्कुल ही ईमान ले आएंगे। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते हैं। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल व मकबूल फरमाता है और उन तमाम टिड्डियों के 7वें दिन तमाम अजाबों को उठा लेता है। लेकिन ये बदबख्त, ये खबीस फिरौन फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आता है। ये 1 महीना राहत और सुकून के साथ तो रहता है, लेकिन जैसे ही इनकी तमाम मुसीबतें खत्म होती है, इनके ऊपर तमाम अजाब बंद हो जाते हैं, ये लोग फिर से बनी इसराइल के कौम को इस तरीके से परेशान करते हैं, बनी इसराइल के लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं, इनके बच्चों को मारते हैं, इनके बच्चों को पीटते हैं, इनकी बीवियों पे जुल्म करते हैं। इनका जुल्म इतना बदतरीन बढ़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि ये फिरौनों का जुल्म बनी इसराइल पे इस तरीके से बढ़ चुका है। ये तो हर वक्त अहद करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन अब की बार भी ये लोग ईमान न लाए। ये अल्लाह ये लोग तो ईमान न लाए, फिर इनके ऊपर इस तरीके से अजाब मुब्तला कर कि ये बनी इसराइल के कौम को फिर से परेशान ना करे, ये लोग परेशान ना करे। इतना कहना होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिर से दुआ को कबूल फरमाता है। जैसे ही दुआ कबूल होती है, वहाँ पे फिर फिरौनों के महल में हर 1 महीने के बाद फिरौन के घरों में अजाब हो रही है। फिर 1 महीने के बाद उसके घरों में अल्लाह तबारक व तआला मेंढकों की बारिश फरमाता है। अल्लाहु अकबर। आप देख सकते हैं
کہ मेंढकों की बारिश फरमाता है, जैसे ही मेंढक की बारिश फरमाता है, जैसे ही मेंढक की अजाब फिरौनों के घर तक पहुंचती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेंढक की बरसात होती है कि उनके तमाम खानों में मेंढक है, उनके तमाम पानियों में मेंढक है। इस तरीके से अल्लाह ने तबारक व तआला ने फिरौनों को इस तरीके से अजाब में मुब्तला किया है कि तमाम मेंढक उनके घर में आ चुके हैं, तमाम बर्तनों में है, तमाम खानों में मेंढक है, तमाम कपड़ों में मेंढक है। यहाँ तक कि जब वो बोलते थे तो उनके मुंह पे मेंढक घुस जाता था। यहाँ तक कि अब तो ये हाल हो गया था, अजाब इस तरीके से बढ़ चुकी थी, जब वो फिरौन अपनी महफिल को सजाते थे, अपनी महफिल में कुछ गुफ्तगू करते थे तो तमाम मेंढक उनके सरों पे आकर बैठ जाते थे, तमाम मेंढक उनके मुंह पे आके बैठ जाते थे। वो लोग ये तमाम अजाबों से परेशान होकर, मेंढकों के अजाबों से परेशान होकर फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए मूसा, हम लोगों से गलती हो गई, मैं फिर से तुझसे अहद करता हूँ, इस बार मैं फिर से ईमान ले आऊंगा, इस बार मैं फिर से ईमान ले आऊंगा, इस बार मैं फिर से ईमान ले आऊंगा। ए मूसा, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से दुआ कर, ए मूसा, अल्लाह से दुआ कर कि ये अजाब हम लोगों पे उठा लिया जाए, ये अजाब हम लोगों से उठा लिया जाए। इतना कहना होता है कि फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मेंढकों की बारिश होती है, इस तरीके से मेंढकों की बारिश होती है कि फिरौन का रहना अपने घरों में मुश्किल हो जाता है, फिरौन अपने घरों में रहना बहुत ही दुश्वार हो जाता है, बहुत ही रहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, वो लोग अहद करते हैं कि ए मूसा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दे कि ये अजाब हम लोगों पे उठा ले। अब की बार हम यकीन करते हैं, हम अहद करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह, इन लोगों पे जो भी अजाब है उठा ले, ये अब की बार ईमान ले आएंगे। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाबों को उठा लेता है, जैसे ही तमाम रंजो गम इन लोगों से खत्म हो जाती है, तो आप यकीन माने जब फिरौन 1 महीने तक राहत और सुकून के साथ रहता है, फिर इनकी ये 26 फिरौनों का जुल्म इस तरीके से बढ़ जाता है कि ये लोग बनी इस्राइल पे इस तरीके से जुल्म करना शुरू कर देते हैं, कि जिसकी कोई हद नहीं। अब तो जुल्म इतनी बढ़ चुकी थी कि सर का पानी आउट हो चुका था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, इन लोगों ने फिर से बनी इस्राइल पे जुल्म करना शुरू कर दिया है। ये लोग अहद करते हैं लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाते हैं। ए अल्लाह, इन लोगों को हलाक कर दे, इन लोगों को बर्बाद कर दे। तो इन लोगों को बर्बाद कर दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों पे ऐसे अजाब को मुब्तला फरमाता है, इस तरीके से अजाब को मुब्तला फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला खून की बारिश अता फरमाता है। जब ये लोग खाते थे तो खाने में खून नजर आता था, जब ये पानी उठाने जाते थे तो पानी खून बन जाता था। यहाँ तक कि जब ये लोग नहर को जाते थे तो नहर का तमाम पानी खून बन जाता था। लेकिन बनी इस्राइल के लोग जब पानी पीते थे तो वो पानी ही रहता था, लेकिन जब फिरौन के लोग पानी पीते थे तो वो खून बन जाता था, उनके तमाम खून बन जाते थे। इस तरीके से मुसलसल 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे। जब प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी तो फिरौनों ने बनी इस्राइल के घर में जाकर खाना खाना शुरू कर दिया। वो लोग सोचते कि अगर बनी इस्राइल के बर्तन में खाएंगे तो वो खाना खून नहीं बनेगा, उनका पानी पिएंगे तो वो पानी खून नहीं बनेगा। तो वो बनी इस्राइल के कौम के पास जाते हैं और उनके बर्तन पे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बनी इस्राइल के खाने को खाते हैं तो वो खून बन जाता है, उनके पानी को पीते हैं तो वो पानी खून बन जाता है। इस तरीके से होने लगा और आधे लोग तो हलाक हो गए।
पानी की शिद्दत से हलाक हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इनका और ये लोग इतने परेशान हो गए कि ये फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि अब की बार मैं अहद करता हूँ कि मैं अल्लाह पे ईमान ले आऊँगा। अल्लाह से दुआ करो कि हम पे ये अजाब उठा लिया जाए, इतना कहना होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनके अजाब को उठा लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फिर 7वें दिन इनके अजाब को उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों का जुल्म व सितम खत्म नहीं हुआ। ये लोग इतने बदतरीन हो चुके थे, इन पे तमाम अजाब मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन इनके जुल्म व सितम करना अभी भी बंद नहीं हुआ था। ये लोग इतने जुल्म, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बार इन फिरौनों को मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी अजाब इन लोगों पे मुसलसल किया, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लिए। लेकिन आखिरकार जब फिरौनों का जुल्म व सितम हद से हद बढ़ गया, जब फिरौन का जुल्म सितम इतना बढ़ गया कि बनी इसराइल के कौम वहां पे रहना उन लोगों को मुश्किल हो गया, वहां पे खाना उन लोगों को मुश्किल हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पर इस तरीके से अजाब को मुब्तला किया कि दरियाए नील था, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फिरौनों को दरियाए नील में गर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर, गर्क कर दिया, यहाँ तक कि उनके नामो निशान को मिटा दिया, यहाँ तक कि उनके कब्रों को खत्म कर दिया। अल्लाहु अकबर। आप देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बार उस फिरौन को मौका दिया, हर बार अजाब में मुब्तला करके उनके अजाबों को उठा लेते थे कि अब ये सुधरेगा, अब ये ईमान लाएगा। लेकिन वो कमबख्त, वो जालिम, वो तकब्बुर करने वाला अहद करता था, लेकिन वो ईमान न लाया। लेकिन आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दरियाए नील में गर्क करके इतनी भयानक मौत दे दी कि उसकी इबरतनाक खबरें आज भी दुनिया में लहरा रही है। आज भी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन का जिक्र फरमाया है। आपने देखा बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने हुकूमत करके, जिन्होंने तकब्बुर करके आज वो कब्र में हलाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मौत अता फरमाई है कि उनके नामो निशान को अल्लाह तबारक व तआला ने मिटा दिया है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, इस वाकया से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज अपने ऊपर घमंड व तकब्बुर करते हैं, आपने देखा फिरौन का हाल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया। आज हमें वक्त मिला है, अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका देता है कि अपने गुनाहों से तौबा कर। हम तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन अपने तौबे पे अपने अहद को पूरा नहीं करते, अपने वादे को पूरा नहीं करते। आखिरकार आपने देखा फिरौन का क्या अंजाम हुआ। आखिरकार वो बड़ा बादशाह जो अपने ऊपर तकब्बुर करता था, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उसको दरियाए नील में गर्क कर दिया। लेकिन आप यकीन माने, आज हम और आप है, आज हम लोग भी तकब्बुर व घमंड में इस तरीके से मुब्तला हो चुके हैं कि आज हमें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, आज हमें इबादत करने का टाइम नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े बादशाह आए, हुक्मरान करके कब्र में मिल गए। हम और आप क्या है? अभी भी हमारे पास तौबा का दरवाजा खुला है, अभी भी हम तौबा कर सकते हैं। सच्चे व पक्के दिल से तौबा करें। आप यकीन माने, अगर आप सच्चे व पक्के दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह रहमान है, अल्लाह हमारी गुनाहों को मुआफ करने वाला है। अपनी गुनाहों से तौबा करें, अपनी आखिरत का सोचें। बिल्कुल आज दुनिया का भी सोचना है, हमें दुनिया का भी देखना है, लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी करें। जिस तरीके से आप दुनिया की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आप आखिरत की तैयारी करें। आपने देखा फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से अज़ाबों में मुब्तला करके आखिरकार दरियाए नील में गर्क कर दिया। इसी तरीके से हमें अपनी गुनाहों से तौबा करनी है। आपको इसी तरीके से आप प्रॉफिट सीरीज चाहिए या किसी भी नबियों का बयान चाहिए तो आप नगमा हुसैनी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इफ आपको
کوئی بھی اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو پہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں. پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ